everyone, I'm Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 117 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session. Concept of sustainable development came into vogue in options are Pocock Declaration on Environment and Development. Option 2, Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage. Option C, Declaration of General Assembly of United Nations, Declaration on 17th December 1970, या none of above. See, what is sustainable development? Development in a way, like development in such a way, like you are meeting your needs, you are using the natural resources, you are getting the natural resources, you use the natural resources in a way like आपकी जो future generation है उसको भी बिना efforts करे आपके वो natural resources मिले. हम natural resources को use कर रहे हैं, हम लोग easily natural हम resources हमें मिल रहे हैं, हमें natural resources को use करने के लिए fight नहीं करना पड़ा. So developing in a way like without इस तरीके से यूज करो नेचुरल रिसोर्सेज को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. ठीक है, सो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और ये आपका कंसेप्ट जो था इट केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन, कब आया था ये? ब्रंटलैंड रिपोर्ट से ये आपका जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. So Brundtland report, it was given in 1987. Clear? So according to options, answer would be none of above. Question number 2. The UN Framework Convention on Climate Change 1992 came into force on. So UNFCCC की बात हो रही है. So UNFCCC जब आपका Earth Summit आया था in 1992, it was created at that time in UNFCCC. तो आपको बताना है कि ये force में कब आया. Options are 21st March 1993, 21st March 1994, 29th March 1993 या फिर 29th March 1994. So correct answer is B, 21st March 1994. So UNFCCC आपका create हुआ 1992 में, but it came into force on 21st March 1994. So correct answer is B. Question number 3. According to Article 1 of UNFCCC, climate change alters the composition of global atmosphere which is attributed to. So UNFCCC के accordingly UN जो आपका climate change है वो आपका क्या है? मतलब वो global atmospheric composition को change कर रहा है, ठीक है, बट ये composition change क्यों हो रहा है? Attributed to, ये किसके कारण हो रहा है? ठीक है, ऑप्शंस आर डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज या नो ह्यूमन एक्टिविटीज. तो जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जिस क्लाइमेट चेंज के कारण फर्दर आपके ग्लोबल एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ बोथ द डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज. सो जो भी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका जो मेन रीजन है वो हम लोग हैं, चाहे हमारी कोई डायरेक्ट एक्टिविटीज है या हमारी कोई इनडायरेक्ट एक्टिविटीज है. सो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द मेन एम ऑफ UNFCCC? सो अभी हमने कहा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसका जो मेन एम है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज को टैकल करना. सो ऑप्शन देखो क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, increase of temperature, stabilization of oxygen. So greenhouse gas का जो stabilization है that is related to decrease in climate change या decrease in global warming या reduce, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल करना global warming को या climate change को. So UNFCCC जो है आपका FCCC, its main aim is to stabilize the greenhouse gases. अगर greenhouse gases stabilize होंगी तो global warming ही होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए. सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. द क्लाइमेट चेंज हैज severely affected the atmospheric processes including rainfall and therefore artificial rainfall has assumed significance. Which of the following is or are used in artificial rainfall?
मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में बहुत सारे सिवियरली वो अफेक्ट हुआ, रेनफॉल भी अफेक्ट हुई। सो रेनफॉल अगर कम हो रही है, हम लोग को इसके कारण क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल रेनफॉल ने, मतलब आप कह लो कि उसका जन्म हुआ है, आर्टिफिशियल रेनफॉल सिग्निफिकेंस में आई। सो इनमें से किसको हम लोग आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस आर सिल्वर आयोडाइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शंस में है ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड थ्री या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, सो देखो सिल्वर आयोडाइड एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी ड्राई आइस, दोनों ही यूज होते हैं आपके फॉर द आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, क्लाउड्स के ऊपर इनको स्प्रे किया जाता है, क्लाउड्स विद सिल्वर आयोडाइड एंड ड्राई आइस, दोनों का इन दोनों को यूज कर सकते हैं फॉर स्प्रेइंग ऑन द क्लाउड्स, जो कि आपको फर्दर रेनफॉल में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ड्राई आइस इज कंपैरेटिवली चीप देन सिल्वर आयोडाइड, तो दोनों ही यूज होते हैं। अगर बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे नाम लिखा है सीडोमोनास सिरिंगे। सो जो सीडोमोनास सिरिंगे है, बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है। अगेन दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट प्रोवाइड अ सरफेस, ये वाटर वेपर्स के लिए एक सरफेस दे रहा है ताकि वाटर वेपर्स आपस में ज्वाइन हो जाएं, विच फर्दर लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन। ठीक है, जो सिल्वर आयोडाइड है या ड्राई आइस है, ये बेसिकली इंक्रीज करते हैं द नंबर ऑफ क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। जो अगर आपका न्यूक्लियाई कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो है वो इनहांस होंगे तो डेफिनेटली इट विल मतलब वो हेल्प इन रेनफॉल को लाने के लिए वो हेल्प करेंगे। ठीक है, सो तीनों ही 1 2 3 तीनों ही आपके क्या करते हैं, दे आर यूज्ड इन द आर्टिफिशियल रेनफॉल। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, डी। So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support of professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.